संत रामपाल जी महाराज एक अजिहे महान संत जिन्हां ने अपनी सत भगती, तत्व ज्ञान, करुणा ਅਤੇ सेवा ਦੇ बल ਤੇ समाज ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਅਦਭੁਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਏਡਜ਼ ਆਦਿ ਠੀਕ ਹੋਈਆਂ। ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਯੂਨਿਟ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਭੈਣ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਦਹੇਜ ਮੁਫਤ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਇਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਉਜੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸੇ। ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸੰਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੁਫਤ ਭੰਡਾਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਧਰਮ, ਹਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹਰ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ, ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਕਦੇ ਹਨ। ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਹੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਭੂਚਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਚਾਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਅਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧਨ ਬਣਾਈਏ। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर सच्चे राह दिखाने वाला सरोज देवी, रुद्रपुर, उत्तराखंड की एक साधारण महिला जिन्होंने अपना जीवन देवी देवताओं के प्रति पूरी आस्था के साथ समर्पित किया था।
व्रत करती थीं, पूजा पाठ में लीन रहती थीं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कठिनाइयों का अंत नहीं था। बचपन से ही उनके मन में एक सवाल गूंजता रहता था, हम कहां से आए हैं? हमारे जीवन का असली मकसद क्या है? परिवार में मुश्किलें कम नहीं थीं। उनके पिताजी नशे के आदी थे और शादी के बाद उनके पति भी उसी राह पर चल पड़े। ये बात सरोज जी के दिल को चीरती थी। दिन रात इस चिंता में घुलती रहीं, लेकिन जवाब कहीं न मिलता। फिर एक दिन उनके पड़ोसन ने उनके पति को संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के बारे में बताया। वह दिन था और आज का दिन है। उनके पति ने सिर्फ सृष्टि रचना का ज्ञान सुनकर सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया। इस चमत्कार ने सरोज जी को झकझोर दिया। वे अपने पति के साथ संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम पहुंची और नाम दीक्षा ली। कुछ समय बाद ही उनकी फैलोपियन ट्यूब फट गई। डॉक्टरों ने ऑपरेशन का सुझाव दिया, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से उनका ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया। एक बार उनके पति आईसीयू में भर्ती हुए, लेकिन गुरु जी की दया से वे भी पूर्णतः स्वस्थ हो गए। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे राह दिखाने वाले सद्गुरु के साथ चाहे कितनी भी बड़ी कठिनाइयां क्यों ना हो, सबका समाधान संभव है। तो आइए अब सुनते हैं सरोज देवी जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? सरोज देवी सर। बहन जी आप कहाँ से हैं? सर उत्तराखंड रुद्रपुर से। बहन जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 2013 में ली। बहन जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर हम संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले वही पारंपरिक जो मम्मी पापा सब करते थे देवी देवताओं की, वही हम भी करते थे। और मैं सर बताना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा तो मैं बृहस्पति देव की बहुत पूजा करती थी, विष्णु भगवान की बहुत पूजा करती थी। इतनी पूजा करती थी कि मैं कभी भी बृहस्पति को नमक नहीं खाती थी, इतना मैं व्रत रखती थी उनका। बहन जी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने का क्या कारण बना? सर संत रामपाल जी महाराज जी के आने का ये मैं बताना चाहूँगी आपको कि जब शादी हुई, शादी होने के बाद मेरे सर हस्बैंड जो थे वो बहुत ड्रिंक करते थे। तो मुझे मतलब बहुत बहुत वो लगता था कि बचपन से ही मेरा कुछ ऐसा था कि मुझे भगवान की तरफ भक्ति में बहुत वो था, व्रत रखना या मतलब मंदिरों पर जाना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो शादी होने के बाद जब मैंने यहाँ पे देखा कि मेरे हस्बैंड बहुत ड्रिंक करते हैं, और तब मुझे बहुत वो लगता था कि और वो अकेले थे, एक ही अकेले ही थे, उनका कोई भाई नहीं है, 2 बहनें हैं और वो अकेले हैं। तो ये सब देख के और उनके घर वाले मम्मी पापा भी बहुत परेशान रहते थे कि हमारा एक बेटा और इतना ड्रिंक करता है, नशा, कोई मतलब वो नहीं था कि वो ऐसी चीज़ ना करते हों। वो मेडिकल लाइन पे हैं, इस वजह से वो ज़्यादा ये सब चीज़ें करते थे। तो मुझे ये सब बहुत बेकार लगता था। इसके बाद एक पड़ोस में आंटी थी, तो सबसे पहले तो मेरी वो 2 नंदे हैं, वो गई, वो आंटी लेके गई घूमने के उद्देश्य से संत रामपाल जी के महाराज के आश्रम में। तो वहाँ जाके उन्हें बहुत अच्छा लगा, तो वो वहाँ से नाम दीक्षा ले आई। वहाँ वो लेकर जब घर पे आई, तो फिर हम रुद्रपुर में मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं मेडिकल में, तो वहाँ से जब हम लोग रुद्रपुर से घर आए तो वो कहने लगी कि भाभी आप भैया को भी लिवा जाओ तो इनका नशा छूट जाएगा। तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसे कहीं जाने से नशा थोड़ी ना छूट जाता है। तो वो कही नहीं, वहाँ पे जाओगी तो नशा छूट जाएगा भैया का, और ये चीज़ें नहीं करेंगे। तो हम उनकी बात टाल देते थे, नहीं वो करते थे। मेरे हस्बैंड भी सुनते थे, वो भी टाल देते थे। मेरे हस्बैंड घर गए, पड़ोस में जो आंटी रहती थी वो उन्हें समझाने लगी, मेरे हस्बैंड को समझाने लगी कि ये ऐसा ऐसा सब पूरा सृष्टि रचना सुनाई। उन्हें पता नहीं कैसे उन्होंने वो बताया कि एकदम मेरे हस्बैंड के मतलब दिमाग में बैठ गया, इतना समझ में आ गया उनको कि वो जब वहाँ से घर से जब वापस आए ना रुद्रपुर में, तो मैं उन्हें देखती थी कि जब से वो घर से आए हैं तो एक बदलाव मैं उनमें देखती थी कि सिगरेट के पैकेट को बिल्कुल हाथ नहीं लगाते थे। और मैं कहती थी कि जब से ये घर पे से आए हैं तो पता नहीं क्यों ये सिगरेट को बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाए, ऐसा क्या है। तो वो फिर इसके बाद मैंने जब उनसे 2-3 दिन ऐसे हो गया, मैंने देखा, फिर इसके बाद में मैंने पूछा कि क्या बात है, आप तो बिल्कुल मैं देख रही हूँ कि सिगरेट को हाथ ही नहीं लगाते हो। तो कह रहे हैं कि मुझे ना आंटी जो रहती ना वो मुझे बताया ये सब चीज़ें करने से क्या होता है। तो फिर मैंने कहा अच्छा,
तो फिर वो मुझे भी कहने लगे, बताने लगे पूरी सृष्टि रचना कि ऐसे-ऐसे है, दुर्गा का प्रतिकाल है, ये हमको खाता है, ये सब हम ऐसे अपने आहार के लिए हमें सब ऐसे करता है, हमें गलत साधना बता के हमें ऐसे फँसाया हुआ है इस काल के लोक में। तो मैंने कहा अच्छा। फिर नेक्स्ट मंथ में वो जाने के लिए कहने लगे परमात्मा के संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में। तो मुझे कहने लगे कि आप भी चलो, तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगी, पहले आप जाओ। कहे कि नहीं चलना। मैं बृहस्पति का व्रत रहती थी, इसकी वजह से मैं नहीं जाना चाहती थी कि मैं जाऊँगी तो मैं फिर ये सब नहीं कर पाऊँगी, भगवान की नहीं भक्ति कर पाऊँगी। तो वो कहने लगी कि नहीं चलो। तो फिर उनके कहने से मैंने कहा कि ठीक है, मैं बृहस्पति का पहले उद्यापन करूँगी, फिर इसके बाद मैं जाऊँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर मैंने बृहस्पति का उद्यापन किया, इसके बाद में फिर हम लोग संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में गए। फिर वहाँ जाने के बाद मेरे हस्बैंड जो थे वो नाम दीक्षा ले गए, क्योंकि उनको पूरा ज्ञान समझ में आ गया था। इन्होंने ज्ञान गंगा पुस्तक एक आती है वो भी नहीं पढ़ी थी, लेकिन इनको फिर भी ज्ञान समझ में आ गया और मेरे समझ में कुछ भी नहीं आया था, मैं इनके कहने पर ले ली थी। हम दोनों ने वहाँ पे नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी सर, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से हमें बहुत सारे लाभ हुए और मैं बताना चाहूँगी जो बड़े लाभ हैं जो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से हमें मिला। सबसे पहले तो आध्यात्मिक लाभ हुआ कि जो हमें पता चला कि पूर्ण परमात्मा कौन है, हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए। सात संत भक्ति बताई संत रामपाल जी महाराज जी ने। और दूसरा कि मेरे हस्बैंड जो थे वो ड्रिंक करते थे, तो मतलब ड्रिंक करके अपने फादर्स के सामने कभी वो सिगरेट भी, उनको पता ही नहीं चलता था कि ये हमसे मतलब बड़े हैं, हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, और इनके सामने हम ऐसे सिगरेट लेके पी रहे, वो भी वो नहीं होश नहीं रहता था। और मम्मी पापा बहुत दुखी मतलब वो रहते थे कि देखो ऐसे करता, और मुझे भी देख के बहुत लगता था, क्योंकि बचपन से ही मैं ऐसे मतलब माहौल पे रही हूँ कि मुझे भक्ति का और बहुत ही मतलब वो था कि भगवान कौन है, हम क्यों आते हैं यहाँ पे और क्यों फिर वो जाते हैं, हम कहीं से तो आए हैं ना, फिर हम क्यों ऐसे मरते और जीते हैं। इसका मुझे बहुत वो लगता था कि क्या ये है जीवन, ये क्या ज़िंदगी है जो आते हैं और हम बस फिर मर के फिर चले जाते हैं क्या। मुझे बहुत इस चीज़ का वो लगता था। मैं गुजरात से, मेरी मम्मी पापा पूरी फैमिली गुजरात में रहती हैं, तो मैं वहाँ मेरे पापा भी कभी-कभी ड्रिंक करते थे, तो मैं उनको भी मना करती थी, तो वो नहीं मानते थे, कहते थे कि तुम तो यही बोलती रहती हो कि मत करो, ये तो मैं अपना थोड़ा-सा करने के लिए करता हूँ, काम करके आके थकावट के लिए, तो मुझे नहीं अच्छा लगता था, मैं उनको भी मना करती थी। फिर शादी के बाद भी ऐसे मेरे हस्बैंड करते थे, वहाँ भी मुझे बहुत वो लगता था। इसके बाद वो ये सब करते थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से वो सारी चीज़ें छूट गई कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि जो इंसान इतना ड्रिंक करता हो दिन में, रोज़ डेली जो 1-1 2-2 हज़ार की जो पी जाता हो, उसका सोचो कि वो जिसका नशा ऐसा छूट जाए तो वो कितना बड़ा मतलब वो होगा। संत रामपाल जी महाराज से पहला लाभ तो हमारा ये हुआ सर जी। दूसरा लाभ मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे 1 डेढ़ महीना की प्रेगनेंसी थी, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा नहीं ये नहीं है और ऐसे ही है। तो हमने इसमें सोच दिया कि चलो नहीं है, ऐसे ही है। फिर इसके बाद मुझे हल्का-हल्का पेट में दर्द होता था, पेन होता था, तो हमने फिर मतलब हमें मतलब डाउट था कि लग रहा है कि है, डॉक्टर ने तो मना कर दिया है। चेक किया था हमने, तो उसमें मतलब पॉजिटिव बताया था, प्रेगनेंसी थी, और डॉक्टर को दिखाया तो उसमें कुछ भी नहीं निकला अल्ट्रासाउंड में। फिर इसके बाद जो है कि हमने परमात्मा से मतलब वो लगाई, पहले भी एक बार हो चुका था, तो हमने संत रामपाल जी महाराज से हमने अर्जी लगाई, तो वहाँ से हमें आदेश आया संत रामपाल जी महाराज का कि परमात्मा दया करेंगे। तो हमने मतलब वो कर लिया कि ठीक है, मालिक जो कह दिया संत रामपाल जी महाराज ने, हमारे गुरुजी ने, बस वही वो है। फिर हम बिल्कुल मतलब बेफ़िक्र हो गए। इसके बाद 15 दिन के बाद मेरी जो ट्यूब मतलब वो थी जिसमें बच्चा था, वो एकदम मतलब फट गया। दिन का समय था और 10 साढ़े 10 बज रहे थे। इतना ज़ोर मतलब पेट में दर्द हुआ, अचानक से मतलब उल्टियाँ हुई, और मैं सीधा बाथरूम में गई और इतना चक्कर आया कि अगर किसी और को चक्कर आता ना,
तो वो घूम के गिर जाता, लेकिन नहीं, मैं संत रामपाल जी महाराज के दिए हुए मंत्र का जाप करती रही। और मैं मतलब वहाँ से मतलब ऐसा होने के बाद में मैं अपने वो घर पे काम करने लगी। मैं पोछा झाड़ू जो भी वो रेगुलर काम होता है वो मैं करने लगी। इसके बाद में मेरे हस्बैंड आए, वो बोले ये सब छोड़ो और हॉस्पिटल चलना है दिखाने के लिए। तो मैंने कहा क्यों नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं तो अपने घर का काम कर रही थी, मुझे कुछ था ही नहीं। संत रामपाल जी महाराज के इतने मतलब मंत्रों में शक्ति है कि मतलब कुछ भी मुझे वो नहीं हो, थोड़ी सी हल्की हल्की वीकनेस महसूस हो रही थी। मैं हॉस्पिटल गई दिखाने के लिए, तो वहाँ पे मतलब चेकअप हुआ। वहाँ पे देखा कि मतलब जो ट्यूब थी वो फट गई थी। इसके बाद मतलब ब्लड भी कम हो गया था। तो डॉक्टर ने कहा कि इतना मतलब वो करने के बाद ये इतना मतलब सही से हैं, काम भी करते रही, उनको तो कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से मुझे कुछ भी मतलब ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि मतलब ट्यूब फटी है। मैं बिल्कुल वैसे ही काम करती थी जैसे रोज़ करती हूँ, बस हल्की सी वीकनेस हो रही थी और चक्कर सा हल्का सा आ रहा था। फिर डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए कहा, तो मेरे हस्बैंड ने फिर मतलब एडमिट कर दिया और मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के दौरान में जो मतलब होता है, तो मैं संत रामपाल जी महाराज के दिए का सतनाम करती रही। और इसके बाद में ऑपरेशन मेरा हुआ और मैं आज आपके सामने हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। सर जब हॉस्पिटल में गए मेरे हस्बैंड लिवा के, तो वहाँ पे मतलब डॉक्टर ने जब देखा तो कहा कि नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता कि मतलब इतना ट्यूब फटने के बाद और ये मतलब बिल्कुल ऐसे मतलब वो दिखाई दे रहे, स्वस्थ दिखाई दे रही हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के मंत्रों में इतनी शक्ति है कि मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था कि मेरी ट्यूब फटी है। और सर मेरे कैल्शियम की कमी से हाथ पैरों में बहुत दर्द होता रहता था कि हमेशा मेरे घुटनों में इतना दर्द होता था कि मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती थी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से मेरे वो भी ठीक है। अब मैं सब घर का पूरा काम करती हूँ, सीढ़ियाँ भी चढ़ती हूँ। और एक बार मेरे हस्बैंड को जो इतना पेट में दर्द हो गया था कि डॉक्टरों को जब दिखाया तो डॉक्टरों ने कहा कि पहले तो दिखाया तो कुछ रिपोर्ट में कुछ भी नहीं निकला। फिर सीटी स्कैन कराई, फिर उसमें निकला कि सीने में पस बन गया है। फिर वहाँ ऑपरेशन के लिए कह दिया। तो हम मतलब बहुत घबरा गए थे, घर वाले भी सब बहुत वो हो गए थे। तो संत रामपाल जी महाराज से फिर हमने प्रार्थना लगवाई, वहाँ से मालिक का आदेश हुआ कि परमात्मा दया करेंगे। फिर मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ, फिर उनको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया और मैं बहुत ही मतलब दुखी थी कि परमात्मा आज मेरे हस्बैंड आईसीयू में हैं। तो मालिक का एक शब्द मुझे ध्यान आ रहा था कि जो संत रामपाल जी महाराज के शरण में है ना, उनके बच्चों को कुछ भी नहीं मतलब हो सकता। उनकी भी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद उन्हें बच्चों को कुछ भी नहीं हो सकता। फिर मेरे हस्बैंड जो थे वो आईसीयू में शिफ्ट के सुबह उनको निकाला गया, वो ठीक थे। फिर इसके बाद में 15 दिन के बाद उनको हॉस्पिटल से वहाँ से डिस्चार्ज किया गया। फिर वो तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी से आश्रम गए। वहाँ से संत रामपाल जी महाराज से गुरुजी से आशीर्वाद लिया। इसके बाद वो पूरी तरह स्वस्थ हैं। आज तक उन्हें कोई भी एक दवाई नहीं खाई। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके माताएं बहनें, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगी कि देखो आजकल की बहुत ही न्यू पीढ़ियाँ हैं जो नशे से बहुत परेशान हैं, उनसे मैं खास करके उन बहनों से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जिनके भी पति नशा करते हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और उनका ज्ञान समझे और उनसे नाम दीक्षा लेके अपना जीवन सफल बनाए। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ सकते हैं? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए बहुत ही आसान आज तो कर दिया है परमात्मा ने कि टीवी में चैनल आता है और चैनल में नीचे पट्टी आती है, उन पे कांटेक्ट नंबर लिखे होते हैं। उन नंबरों से आप संपर्क करके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपना जीवन सफल बना सकते हैं। धन्यवाद जी। नमस्कार सर। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। अब वो परमात्मा स्वयं वहां से चलकर आते हैं
अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को वही ठीक ठीक बताते हैं और यथार्थ ज्ञान वही आकर देते हैं। वो ज्ञान समझाते हैं, मनुष्य की तरह चलकर आते हैं। अपनात्मा इस काल भगवान ने इन अज्ञानी ऋषि महर्षियों मंडलेश्वरों गुरुओं ब्राह्मणों द्वारा, ब्राह्मण कार से या कोई जाति से नहीं है, ये समझना चाहिए, क्योंकि हम वैदिक ज्ञान सुनते नहीं। ब्राह्मण का अर्थ जो गुरु पद पर होता है वो ब्राह्मण है, यानी जो ज्ञान देता है परमात्मा के बारे में, जिसको जानकार मानते हैं। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, ब्राह्मण उसको कहते हैं जिसने भगवान को जान लिया है। लेकिन वो ना जान रहे थे, ब्राह्मण को वहां थे, ऋषि महर्षि थे नहीं, महर्षि को वहां थे। आज उनको महर्षि कहना पड़ता है, लेकिन वो महर्षि के योग नहीं है। उनको ब्राह्मण कहना पड़ता है, लेकिन ब्राह्मण के योग नहीं थे। जैसे मेरे गुरुदेव थे, वो ब्राह्मण थे इस जाति के हिसाब से। हरियाणा में गांव पैंतावास, दादरी के पास बड़ा पैंतावास और जिला भिवानी, उस बड़े पैंतावास के गांव के रहने वाले ब्राह्मण जाति हैं। लेकिन वो अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे, वो संत रामदेवानंद कहते थे, वो संत थे। और मेरे जो दादा गुरुजी थे, गुरुजी के गुरुजी, वो छावला गांव है दिल्ली में, नजफगढ़ से आगे गुड़गांव की तरफ जाते हैं, छावला ऑन रोड पड़ता है। उस छावला गांव के जाट थे, किसान, और वो काशी विद्यापीठ से 4 विषय के आचार्य बन गए। वो पंडित चिदानंद कहलाते थे, वो ब्राह्मण कहलाते थे। अब उस हमारे दादा गुरुजी का जो आश्रम बना हुआ है, गोपालपुर गांव है खरखोदा के पास, जिला सोनीपत में, उनके आश्रम के ऊपर लिखा है पंडित चिदानंद जी आश्रम। और हमारे गुरुदेव के जहां आश्रम है संत राम देवानंद जी आश्रम। तो यहां जाति से ब्राह्मण नहीं है, कर्म से ब्राह्मण के लिए कहा गया है। तो ये नकली गुरु ब्राह्मण जो गुरु पद पर थे, इनको कह का पता नहीं था, ये कहलाते थे ऋषि और महर्षि। तो ये समझ नहीं सके उस परमात्मा की अमरवाणी को। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि ये वेद कतेब झूठे नहीं भाई, और झूठे हैं जो समझे ना ही। तो वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा स्वयं गति करके आता है। अब जैसे यो आर्य समाज का जो ग्रुप है, इसमें शिक्षित वर्ग बहुत है, और लेकिन वो अक्षर ज्ञान है, उनको अध्यात्म ज्ञान नहीं। उधर से महर्षि दानंद को भी कह का पता नहीं था अध्यात्म ज्ञान का, इसलिए उसने कोशिश की वेदों का अनुवाद करने की, और उसका अपना सिद्धांत था कि भगवान निराकार है। वो कहीं एक देश में नहीं रहता, एक देश माने स्थान पर कहीं नहीं रहता, वो केवल सर्वव्यापक है, जैसे वायु है ऐसे भगवान है। भले आदमियों, निराकार परमात्मा इतने बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर कैसे बनाओगा वो? जैसे कोई नौके साकार कैसे बनाओगा, सुन लो साकार कैसे बनाओगा। साकार मनुष्य इंजीनियर है और जहाज बना दिया, हवाई जहाज, वायुयान बना दिया, समुद्री जहाज बना दिया, उसमें बैठ कर आराम से घूम रहा है और वो यान चल रहा है। निराकार कोई कारीगर बना के दिखाए दो, मरे बादशाह के बनाओगा, वो खख बनाओगा। तो ऐसे परमात्मा मनुष्य सदृश है, उनकी वो अमित ओजा है, उसकी शक्ति का कोई वार पार नहीं है। उनकी वचन से सबको जो हो जाता है। जैसे हम देखा करते हैं जादूगर होते हैं, अपने मुख में एक छोटी सी गोली कंचा, इतना वो कंचा होता है, एक उस गोली को मुख में डालते हैं और थोड़ी देर में ओ करके इतना बड़ा मुस्कुल तो का मुंह में तो पत्थर बना देते हैं और नो पटक दे, पट्टा उठा के देख लो कति पत्थर है। तो उस जब एक जादूगर इतना कुछ कर सकता है, और वो तो परम जादूगर, वो तो सर्वशक्तिमान, एक वचन में सब कुछ कर दे। तो ऐसे ही उस परमात्मा की महिमा से हमने परिचित होना। उस परमात्मा ने कहते हैं एक शब्द में सब किया, सकल जमी आसमान, एक वचन में सब कुछ बना दिया। तो समर्थ है, वो कुछ भी कर सकता है। तो वो जानकारी स्वयं ही आकर दी। और ये निराकार बताओ भगवान को, और वेद के साकार है, निराकार है, मनुष्य सदृश है वो। अपने आत्माओं
इसलिए परमात्मा कहा करते, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फिरा मोतिया बंदरे। ये दिख है विद्वान पुरुष और महर्षि को हमें, इनका मोतिया बंद है। जिसका मोतिया बंद हो आंखों में, आंखें तो दिखाई देती हैं जैसे बड़ा स्वस्थ आंखें हैं, सब कुछ दिखता होगा, लेकिन वो नपट अंधा है जिसका मोतिया बंद हो गया दोनों आंखों में। तो परमात्मा कहते हैं कि तुमने ये महर्षि दिखाई दे, गुरु ब्राह्मण दिखाई देते हैं, ये मंडलेश्वर, इनका मोतिया बंद हो रहा है, इन्हें अपने सदग्रंथों में लिखी हुई सच्चाई का नहीं पता। और फिर निराकार कहते। अब दिखाते हैं आपको परमात्मा की सारी स्थिति, देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 अब दिखाते हैं, और सूक्त नंबर 86। भगवान साकार है या निराकार है, वो कैसी लीला करता है। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9, 10 इकट्ठा अनुवाद है। ये है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से ये प्रकाशित है। और ये मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से ये छपा है, छप्पा खाना इसका ये। अब देखना ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 86 का मंत्र नंबर 26। इसमें लिखा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ करने वाले माने धार्मिक अनुष्ठान यानी साधना करने वाले, यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, उनके विघ्नों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। यह लिखना था कबीर देव, कवि कोई भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता जिसको सारा ज्ञान हो। कवि कविता बना सकता है, ये कबीर देव लिखना था यहाँ पर। वो कबीर देव विद्युत के समान यानी आकाशीय बिजली की तरह सेकंड में नीचे आ जावे, क्रीड़ा करता हुआ, ऐसे लीला करता हुआ वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। अच्छी आत्मा को आके मिलता है वो, जैसे आदरणीय धर्मदास जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला दद्दर हरियाणा वाले को मिले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा यूपी मेरठ वाले को मिले। अच्छे पुरुष को आकर प्राप्त होता है। वो कहाँ रहता हो भगवान? 27वें श्लोक में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 का 26 पढ़कर 27 में पागे। इसमें इन्होंने ये जो निराकार मानते थे भगवान को और वेद बता रहे हैं, वह परमात्मा प्रकाश पुंज परमात्मा को, जो परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां रहता है। तीसरे एक स्थान पर रहता है ध्युलोक के यानी उस तेजों में लोक सतलोक के एक स्थान पर, तीसरे स्थान पर विराजमान है, वहां रहता है। निराकार क्यों करो भगवान जब वहां बैठा है? आगे दिखाते हैं। यह है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82। और यहां देखें ये है 82वां, 81वां समाप्त हुआ, ये 82वां शुरू हो जाता है। इसका प्रथम मंत्र इसमें लिखा है कि जो सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर प्रकाश रूप है। इसका अर्थ है वो तेजो में स्वरूप साकार है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, पाप नाश करने वाला, पाप क्षमा करने वाला है। वह राजेव, राजा के समान, राजेव इसका अर्थ है राजा के समान आगे लिखा है। ये देखना, ये 269 पृष्ठ पे पढ़ रहे हैं हम। कोई भ्रमत कर देगा कि दूसरा पृष्ठ दिखा दिया होगा। ये 270 दिखाऊंगा।
ये देखो 270 यहाँ लिखा है 82 का, पहला पढ़ रहे हैं 82 का, 9 के 82 का। राजा के समान दर्शनीय है, वो देखने जोगा है, विजिबल है, वो साकार है, राजा की तरह तो मनुष्य जैसा ही हुआ। और वह है पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, वर्णीय माने अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ पुरुष को, जो दृढ़ भक्त है, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, जो दृढ़ भक्त थे उसके बाद डगमग नहीं हुए, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को, आदरणीय दादूदास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले को, और आदरणीय गीसा दास साहिब जी को गांव खेखड़ा मेर यूपी वाले को। ये दृढ़ भक्त आज तक डगमग नहीं हुए, दुनिया को हिला के रख दिया इन्होंने। इनको भगवान में ले आकर के को पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है वर्णीय पुरुष अच्छी आत्मा को। जिस प्रकार विद्युत माने आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। देखो कितना स्पष्ट किया इन्होंने। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 81 में कति कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि वो परमात्मा राजा की तरह देखने जोगा है। राजा का अर्थ है कि वो शक्तिशाली होता है, मनुष्य सदृश ही है, राजा के समान है और साकार है, देखने जोगा है। और वो अच्छी आत्मा को वहां से चलकर आकर मिलता है ये, और जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको मिलता है, अन्य को नहीं। जैसे आकाश की बिजली, आकाशीय बिजली गिरती है, वो किसी वस्तु पर गिरती है जहां उसका विशेष अट्रैक्शन बनता है। पुराने समय में जब कांसी धातु के बेले थाली हुआ करते प्रांत, और उनको अगर वर्षा के दिनों में कहीं बाहर वो पड़े रह जाते तो हमारे बुजुर्ग दादी माता कहा करते थे कि कांसी के बर्तन पर बिजली गिर जाती है, जब उसका संयोग होता है ऊपर से गिरने का, तो वहां अवश्य उसी को तुरंत वहीं आकर के अट्रैक्ट होती है, उस कारण खिंची आती है, उसी पर गिरती है। उसको उठवाकर अंदर रखवा दिया करते थे। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा उस बिजली की तरह, जैसे वो अपने विशेष जिस पर वो आकर्षण होता वहीं गिरती है, ऐसी स्थिति से परमात्मा उन दृढ़ भक्तों को आकर मिलता है जो मिलन योग्य हों, जिनको वो उनसे आकर्षित होता है, ताकि ये मेरी आगे बढ़ा सके, इस ज्ञान को, काल के जाल को हटा सके, मेरे प्यारी आत्माओं तक ये संदेश पहुंचा सके। और उनका क्या कर ले, आंखें देखें जब भी ना मानो न भगवान मिल लेगा, उन तो काला मिल लेगा जहाँ ये रह रहे हैं। अब 9वें मंडल सूक्त 82 का मंत्र 1 पढ़ लिया, अब 2 दिखाते हैं, देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का हमने ये पढ़ लिया, अब 2 पढ़ते हैं। वो परमात्मा किस उद्देश्य से आता है? हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को, महान आत्माओं को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञों को प्राप्त होते हो। यानी अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी जैसे बिजली चलती है, बिजली जैसी गति से आप, और उपदेश करने के लिए आते हो, यहाँ पर सच्चा ज्ञान देने के लिए। आप कबीर देव, यह लिखना था, सर्वज्ञ लिख दिया, आप यहाँ लिखना था आप कबीर देव हैं। हम उसको कबीर साहब कहते हैं, आप कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप है। अब जैसे ये अभी आपको दिखा था, जहाँ यजु लिखा हो तो यजुर्वेद लिखना पड़ेगा वहाँ पर, वो इन्होंने किया भी है। महर्षि दानंद ने यजुर्वेद के 36वें अध्याय के प्रथम मंत्र में यजु का अर्थ यजुर्वेद किया है, तो यहाँ लिखना था वो कबीर देव है, वो शुद्ध स्वरूप है। हमारे पापों को हे दूर करके, हे सोम, हे अमर परमात्मा, हमको सुख दे। पुण्यात्मा,
वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बाँचे पुराण 18। वेद पढ़े पर भेद न जाने, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था वो छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। ये अज्ञानी रहे इन वेदों को पढ़ा करते, मैं ऋषि को आगे इन कक्का भी नहीं पता था। अब जैसे परमात्मा मनुष्य दृश्य ये सिद्ध होगा, राजा के समान देखने जोगा है, और वहां से गति करके आता है, जिन महापुरुषों को मिलता है। जिन महापुरुषों ने मिला उन बताया कबीर इज गॉड। वो कबीर देव काशी में, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माए कबीर होया। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छोड़ानी जिला जद्दर वाले, जिनको भगवान आकर मिले थे, क्या कहते हैं गरीबदास साहिब ने फिर बताया है कि या दुनिया दा जीवन झूठा भूल गए मर जाने नू, और सर्व कला सतगुरु साहिब की हरियाए हरियाणे नू। वो परमात्मा हरियाणा में आए गरीबदास जी 280 वर्ष पहले, लगभग सन 1727 में, लगभग 300 वर्ष हो गए, 300 वर्ष से भी ऊपर हो गए। सन 1727 में परमात्मा आए थे, और सन 1966 में हरियाणा और पंजाब अलग हुए। जब हरियाणा क्षेत्र का नाम पड़ा था, यो हरियाणा प्रांत बना था, उससे भी कितने वर्ष पहले, 200-250 वर्ष पहले परमात्मा ने लिख दिया, बोल दिया था। गरीबदास साहिब जी ने कहा था कि हरि आए हरियाणे नू। उनके वचन से फिर यो हरियाणा क्षेत्र आज बनकर रहा, ताकि हम इस परमात्मा की वाणी को समझा सकें। अगर ये वाणी 200 वर्ष पहले बोलते, 100 वर्ष 50 वर्ष पहले से बोलते, तो कौन से कहाँ थे, हरियाणा था ही नहीं, जब नाम निशान नहीं था। तो ये हरियाणा बनवा दिया, रीबिया वाणी हमारे को याद दिला दी कि हरि आए हरियाणे नू। इनको पता था मालिक का कि इस वाणी का कहाँ आवश्यकता पड़ेगी, किस समय में। तो वो गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, और वो कहते हैं भगवान हरियाणा में आए भाई, हमारे हमें मिले। और वेद कहते हैं वो अच्छी आत्माओं को आकर मिलते हैं। तो मनुष्य सदृश है परमात्मा। गरीबदास साहिब ने कहा है कि हमरे ही हुनियार है, हमारा सृजनहार, हमारे हुनियार का, हमारे जैसा हमारा स्वरूप, हमारे जैसा स्वरूप है, मनुष्य सदृश है। और वेद बताते हैं कि वो नर आकार है, वो परमात्मा मनुष्य सदृश है। आपको दिखाते हैं कौन कौन से वेदों में, और आपको अभी दिखाएंगे। ऋग्वेद मंडल नंबर 7 और सूक्त नंबर 11 के मंत्र नंबर 3 में लिखा है मनुष्यवत अग्ने। अग्नि माने परमेश्वर। हे मनुष्य के समान परमात्मा। ऋग्वेद मंडल नंबर 7 सूक्त 2 के मंत्र 3 में फिर लिखा है कि मनुष्यवत अग्नि मनुना। हे मनुष्य के समान भगवान, मनुष्य तुल्य, मनुष्यवत, हे मनुष्य जैसे भगवान। मनुना, मनुना माने एक, जैसे एक विद्वान पुरुष की तरह आप आते हो और ज्ञान का भंडारा खोल देते हो। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 44 में मंत्र नंबर 11 में मनुष्यवत देव, देव माने परमेश्वर, हे मनुष्य के समान भगवान। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 31 के मंत्र 17 में मनुष्यवत अग्नि, हे मनुष्य जैसे भगवान। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 46 का मंत्र 13 में लिखा कि मनुष्यवत शंभु, मनुष्य के समान है कल्याणकारक परमात्मा। शंभु माने भगवान। ऋग्वेद मंडल नंबर 8 सूक्त 18 के मंत्र 21 में नरवत वरुण, नरवत, हे मनुष्य कैसे भगवान। ऋग्वेद मंडल नंबर 8 सूक्त 43 के मंत्र 13 में मनुष्यवत अग्नि। ऋग्वेद मंडल नंबर 8 सूक्त 43 के मंत्र 27 में मनुष्यवत अंगिरह है। अंगिरह माने परमात्मा, तेजों में शरीर युक्त। इनमें सब में लिखा कि परमात्मा मनुष्य सदृश है। आपको दिखाते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 का अनुवाद महर्षि दानद ने कर रखा है, और इसने कोशिश की है कि मैं अड़ंगा अड़ाऊं और इसको खत्म कर दूं कि कोई पढ़ ना ले कि तय मनुष्य के तुल परमात्मा लिखा है। पहले इसी का दिखाते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 के मंत्र 17 में ये देखिएगा, ये प्रथम मंडल है, महर्षि दानंद जी का अनुवाद है इसमें। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दान भवन रामला मैदान नई दिल्ली से।
और ये है मुद्रक हैं सम्राट प्रिंटर्स एंड बाइंडर्स 1606 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। ये इसका मुद्रक बदल गया है पहले वाले से। ये देखिएगा, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 1 और सूक्त 31, इसका मंत्र नंबर 17 है। ये 17, इसमें क्या लिखा है कि मनुष्यवत अग्नि, इसका अनुवाद इसका कहाँ लिखा है इसने, ये देखो मनुष्यवत, इसका अनुवाद क्या मेरी सिद्धांत, इसको क्या मनुष्यवत, और अग्नि को इसने अलग जगह लिख दिया, अग्नि, अग्नि यहां कर दिया और मनुष्यवत को इसने यहां ले लिया, अग्नि पहले लगा दिया। तो इसने लिखा कि हे पवित्र अंगिरह माने प्राण के समान धारण करने वाले, अंगिरह माने भी परमेश्वर होता है। यहां लिखना था मनुष्यवत अग्नि, अंगिरह है अंगिरस, अंगिरसवत अंगिरह है, यातिवत सदने पूर्वम सूचे। अब इसका अर्थ देखते हैं इनके द्वारा। हे पवित्र प्राण के समान धारण करने वाले, यानी भी प्राणी की तरह आप आते हो परमेश्वर। ये क्या सब विद्याओं से सर्वतक व्यापक सभाध्यक्ष, यहाँ भगवान का नामों निशान मिटा दिया, सभाध्यक्ष लिख दिया अग्नि को। आगे देखो, आप मनुष्यों के मनुष्यवत, मनुष्यों के आने जाने के समान, ये लिखना था मनुष्य के समान, मनुष्यवत, मनुष्य के समान, आम आदमी पढ़ सके इसने, मनुष्य के समान। हर वाह शरीर, वाह का क्या अर्थ होता है अनुवाद करते समय, या वाह का अर्थ होता है या के अर्थ कंटिन्यू होना चाहिए इसका अर्थ। शरीर व्यापक प्राण वायु के सदृश राज्य क्रम व्यापक पुरुष के तुल, अंगिर से माने आप एक साधारण मनुष्य की तरह, या ययातिवत, जैसे पुरुष यज्ञ के साथ कर्मों को सिद्ध करते कराते हैं, उस उत्तम प्रतिष्ठा वाले विद्वान विद्या देने वाले हैं। इसका कोई सिर पैर नहीं, कहीं पर भी देख लो अनुवाद का। इसका अर्थ है आप एक साधारण मनुष्य की तरह आते हो, और जैसे एक जन साधारण अपने हाथों से कार्यक्रम करके अपने कर्म काम करके उस तरह आप आते हो, और पूर्ववत है परमात्मा पहले की तरह फिर से आइए, आप ज्ञान देते हो हमें, आप फिर से यहाँ आइए अपने आत्माओं। अब ये सच्चाई आपके सामने आएगी तो फिर आपको हैरान रह जाओगे कि भगवान बता, इसे भी मैं ऋषि व्याघ्र जन ज्ञान को समझाने उसका अडंगा कर दिया। ये देखो इसकी और कलाबाजी दिखाऊं मैं ऋषि दयानंद की, कैसे बट्ठा बैठा रखा अनुवादों का। ये देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 44 का, ये महर्षि दयानंद का अनुवाद है, और मंत्र नंबर 11, इसमें क्या लिखा है, मनुष्यवत देव, मनुष्यवत देव, मनुष्यवत देव, ये इसने लिखा है। अब देव, इस देखो ये एक सेंटेंस है, पूरा एक मंत्र है। अब इस मनुष्यवत देव को साथ साथ अनुवाद में लेना चाहिए। इसने क्या लिया है, सबसे पहले यहाँ लिया देव और मनुष्यवत लिया लास्ट में। देख अडंगा करण का किसा बढ़िया तरीका इसका। हे देव, दिव, हे दिव विद्या संपन्न अग्नि माने भौतिक अग्नि के सदृश उत्तम पदार्थों को संपादन करने वाले मेधावी विद्वान हम लोग। एक अर्थ है, अग्नि माने सीधा लिख देता है परमात्मा, इन्हें 20 जगह लिख रखा है। इसी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के और सूक्त नंबर 96 में दिखाऊं इसने कितनी बार लिख रखा है, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर। ये देखो, क्योंकि वहां भगवान के साकार का जिक्र ना था, मनुष्यवत नहीं था इनमें। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 96 का मंत्र 1 से इन 9 मंत्र हैं इसमें, और 9 में तो 8 में अग्नि है। अग्नि माने तो इन सब में परमेश्वर लिखा, अग्नि माने परमेश्वर व भौतिक अग्नि, परमेश्वर लिखा प्रथम मंत्र में। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 96 का दयानंद का अनुवाद है। मंत्र नंबर 1 में अग्नि शब्द था, वहां पर अग्नि माने परमेश्वर, और दूसरे में ये देखो, दूसरे में अग्नि शब्द है परमेश्वर को। अब तीसरे में 1 के 96 का ये तीसरा मंत्र, इसमें अग्नि माने जगदीश्वर लिख दिया,
अब चौथे का अग्नि माने जगदीश्वर, और पांचवें में ये वही चल रहा है ऋग्वेद मंडल नंबर 196 का, और ये 5 में अग्नि, अग्नि माने परमेश्वर को। अब 6 में, ये 6 है, इसका आगे देखो, ये 6 है, ये अग्नि माने परमेश्वर को। या 7 में अग्नि माने परमेश्वर को। 8 में अग्नि शब्द नहीं है। 9 में फिर देखो, 9 में ये वही है, कहते ने सोचा और कितने दिखा दिया है। ये जो 96 तो यहाँ 97 शुरू हो गया यहाँ से, इसलिए इस पृष्ठ पर 96 97 लिख दिया, नहीं यह 96 है, 1 के 96 का लगातार हम अब 9वां मंत्र देख रहे। अग्नि माने अग्नि, अग्नि माने परमेश्वर, समस्त मंगल प्रकट करने वाले परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर। अब यहाँ इसका बिजली गिर गई, अग्नि माने परमेश्वर लिख दिया तो साकार सिद्ध हो गया, मनुष्य जैसा लिखे रखा है ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 44 पे, 44 के मंत्र नंबर 11 में ये लिख रहा है मनुष्यवत देव। देव माने परमेश्वर लिखना था, हे परमेश्वर आप मनुष्यवत, मनुष्य जैसे हो, मनुष्य के समान हो, ये लिखना था। अब ये इसने यहाँ लिखा देव, इसका जो टांग पाट दी, यहाँ से वहाँ ले गया और इसको यहाँ ले आया। कोई बात हुई? जब एक कोई दोहा है, श्लोक है, उसके इसी सेंटेंस का इसी से में अनुवाद होगा। यहाँ का यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ बीच यहाँ का नहीं हो सकता, इसको वहाँ इसको यहाँ नहीं हो सकता, ये बिल्कुल अज्ञान किया है। ये मनुष्यवत तो यहाँ लिख दिया, हे सभापति लिख दिया, मेधावी, ये भौतिक अग्नि लिख दिया, अग्नि का के भौतिक अग्नि के सदृश यहाँ लिखना था, हे परमेश्वर ये मनुष्यवत, ये यहाँ लिखना था यज्ञ के। तो आप धार्मिक अनुष्ठानों का ज्ञान देने के लिए, साधन बताने के लिए परमात्मा आप परमेश्वर आते हो, और गुरु रूप में आते हो, होता रूप में, ऋत्वजम रूप में, ऋत्वज बन के आते हो, और आप मनुष्यवत हैं, मनुष्य के सदृश हो। आपकी बुद्धि इसका कोई, आप ही सबकी बुद्धि को प्रेरित करते हो। ये देखो, और ये लिख दिया मनुष्यवत, और यह मनुष्यवत यहाँ ले लिया, और इस देव को यहाँ ठोक्या, ये अनुवाद होया। तेरा गजब भैया, और मैं ऋषि कवावे। इसे ऐसे बहुत प्रमाण हैं, लेकिन कहते हैं समझदार को संकेत ही बहुत होता है। इनके लिए परमात्मा ने कहा कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिक्कत के तो नैन चश्म, इनके फेरा मोतिया बंदरे। इनका मोतिया बंद हो रहा था। ये महाज्ञानी थे और इनको जनता समझे थी बड़े विद्वान है। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ये तत्व ज्ञान बताया करते थे। ऐसे ही अज्ञानी लोगों ने, ऋषि महर्षि मंडलेश्वरों ने, इन नकलियों ने परमात्मा के इस ज्ञान को हम तक नहीं आने दिया, केवल ये कहकर कि कबीर जो है, ये परमेश्वर कबीर जी के बारे में कहते थे कि कबीर तो अशिक्षित है, ये क्या जाने वेदों और पुराणों और गीता के बारे में, ये झूठ बोलता है, ये कहता है ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनके जन्म मृत्यु होती है, तो ये झूठा है जुला, इसकी बात मत सुनना। और वेदों में परमात्मा बताते थे, कबीर साहब कहते थे कबीर वेद मेरा भेद है, ये चारों वेद मेरा गुणगान करते हैं। लेकिन उस समय भगवान की वाणी का हमें भरोसा हुआ नहीं, क्योंकि हम उन अज्ञानियों को मैं ऋषि मानने थे। अब इन मैं ऋषियों की जो ना वो नकली, अब इनकी ऊपर का कवर उतार के दिखा दिया, जैसे किसी गधे का ऊपर शेर की खाल डाल रखी थी कुमार ने, और शेर की खाल ऊपर डालकर उसने रात ने छोड़ दिया वो खेतों में, वो आसपास के चनों को, गेहूं को, खेती को खावे, और रखवाले ऑर्डर के भाग जा, शेर आ गया, शेर आ गया। एक कुमार को पता चला इस कहानी का कि इस जंगल में शेर आवे रात ने और फसल खा जाता है। तो उसको कुमार शाना था, उसने सोचा शेर खेती नहीं खाता या कोई और बात पाओगी। तो उसने सोचा कोई कुमार ने गलती गड़बड़ कर रखी है, अपना खोता बढ़िया मजबूत ताकतवर बनाने के लिए खवावा खेती ने। तो उसने गाँव वाले से कहा, तुम डरो ना, आ जाओ मेरे साथ, ले चलते हैं, पहचान तो करा उसकी शेर है के। तो उसने अपने 2-4 गधे ले जाके उस जंगल के दूसरी साइड छोड़ दिए, और फिर वो शेर आया न, दूर तो दिखा वो शेर, वो आ गया, वो आ गया,
वो लग गया खेती वो फसल खाने, रखवाले तो चढ़ गए वृक्षों पर। वो कुम्हार बोला तुम वृक्षों पर चढ़ जाते हैं, वो सब वृक्षों पर चढ़ गए। थोड़ी देर में वो गधे जो कुम्हार के थे 5-4, वो लग गया अपनी राग रमण बोलने, हो। उधर से वो शेर भी लग गया, हो उड़े आ दिया अंदर। तो जब पता चला, कहते हैं शेर कार गधे का बोली तो मेरा पट्या करे, ऊपर के कवर थे थोड़ा ही। तो ये ऋषि थे या अविद्वान थे, इनकी ज्ञान तो पता लगा। अब शेर तो पहले से दाड़ रहा था कबीर परमेश्वर, और ये जिनको हम शेर मान रहे थे, ये तो गधे के ऊपर शेर की खाल डाल रखी थी। परमात्मा कहते हैं खरना हुआ केहरी कब हो, सिंह की खाल उड़ाए। शेर की खाल उड़ाने तो गधा शेर नहीं बन सकता। एक केवल ऊपर के कौर को बदल लिया, मैं ऋषि बन कर बैठ गए, संत बन गए, मंडलेश्वर तिलक ला लिए। इन तो संत नहीं बनते, संत ज्ञान से बनता है। और वो कबीर परमेश्वर थे, पूर्ण ब्रह्म है, सर्वशक्तिमान, सर्व ब्रह्मांडों के रचनहार। ये वही परमात्मा है। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया। वो काशी माए कबीर हुआ, वो धानक रूप रहा करतार। बोलो सतगुरुदेव जय हो। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार भैन जी। सत साहब जी। ਭੈਣ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸੁਰਿੰਦਰ ਦਾਸੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ। ਭੈਣ ਜੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 33 ਸਾਲ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹਰਦਮ ਭੰਡਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਤਸੰਗਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। 2 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਗੋਡਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ। ਭੈਣ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਹਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਹਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਸ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀ ਵਾਧਾ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਵਾਧਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਜਾਂਦੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਕੰਮ ਬਣ ਜੂ, ਕੱਲ੍ਹ ਬਣ ਜੂ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਸ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਵੀ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੂਡ ਪਾਈਪ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੂਡ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਉਹ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫੋਟੋਆਂ ਚੱਕ ਦਿਓ। ਬੋਲ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਛੱਡਤੀ, ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਛੱਡਤਾ, ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਛੱਡਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸੇ ਕੁਛ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਕਦ ਤੋਂ ਲਈ? 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਆਪਣੇ 2013 'ਚ। ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਆ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ ਕੋਲ ਆ ਗਈ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਕੌਣ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਦੱਸਦਾ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਧਨਾ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਈ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ। ਕਈ ਦਿਨ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਨੀਚੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇਖੋ, ਸਾਰਾ ਚੈਨਲ ਲਾਓ। ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਨਾਟਕ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਟਕ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਦਿਨ। ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਚੈਨਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਨਾਟਕ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਚੈਨਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸਤਸੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਈ ਦਿਨ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਭਰਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੁੱਕ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਬੁੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾਓ। ਅਸੀਂ ਬੁੱਕ ਵੀ SMS ਕਰਤੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਬੁੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਈ। ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਇੰਨੀ 2-3 ਪੇਜ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ। ਬਰੀਕ ਅੱਖਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੀ ਚਲੋ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਰਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਆ,
ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਐਂ ਕੱਢਤਾ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ 17 ਚੋਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਬਰਵਾਲੇ ਉਤਰ ਜਾਓ ਆ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬੇਟੀ ਗਏ ਜੀ ਬਰਵਾਲੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਾਤਾ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਜੁੱਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਅੱਗੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਏ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੂਸੀ ਲਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਸਮਝ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਗਾ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਵੱਲ ਹੀ ਪੈ ਗਏ ਵੀ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈਣਾ ਬਸ। ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਹੋਊਗੀ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮ ਭਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਗੇ, ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ 'ਚ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲਾ ਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਆਹ ਬੋਲੂੰਗੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਰਹੇ, ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਰਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ 2-2 ਰਾਤਾਂ ਵੀ ਰਹਿ ਆਉਣੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣਾ। ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਭਗਤੀ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕਰੋ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਭਗਤੀ ਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਐਡਾ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਭੈਣ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗਏ ਅਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਂਗਲੀ ਰੱਖ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਿਲੂਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਅਸੀਂ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਲਡ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਗਾ। ਭੈਣ ਜੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਏ? ਹਾਂਜੀ, ਲਾਭ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਮੋਕਸ਼ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਕੌਣ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਕੌਣ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਗਤੀ ਦੇਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਐਡਾ ਦੇਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਡੀ ਬੜੀ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੀਚੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਰ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਜਦ ਮੈਂ 3-4 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਣ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖਾਂ 4 ਸਵੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦਲਦਲ ਪਈ ਆ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹਾਂ ਗੱਭੇ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਐਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਦਲਦਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਦੀ ਬਾਧਾ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਭੂਤ ਦਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਲੜਾਈ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਦੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਦਿਖਦਾ ਜੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਣਾ TV ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਨੀਚੇ ਪੱਟੀ ਚੱਲਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮਦਾਨ ਲਓ। ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, SMS ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਮੰਗਾਓ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋ। ਜਿਹਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋਗੇ ਗਿਆਨ ਆਊਗਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਗਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਭਗਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਫੇਰ ਭੈਣ ਜੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਿਆ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ। ਕੋਈ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦੀਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦੇਤੀ। ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤਾ। ਸਾਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਹੋ ਜੇ, ਭਗਤੀ ਸਾਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਮਿਲੇ ਬਸ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।